morning dear students and welcome to Genesis. In this video I will mainly cover blood transfusion, blood group system and research system. Now before we understand what is blood transfusion, let us understand the two main players of this game. One is the donor and the other one is the recipient. And this process of blood being injected from the donor into the recipient is known as blood transfusion. ये एक बहुत important aspect है जो हमें पता होना चाहिए, because in times of emergency अगर आपको ये relationship नहीं समझ में आया, you may face trouble. In human beings we follow a particular type of blood grouping जिसे कहा जाता है A-B-O blood group system. और इस सिस्टम की फाउंडेशन जिन्होंने बनाया था उनका नाम है कार्ल लैंडस्टीनर. ये आपको याद रखना होगा दिस नेम. सो द सिस्टम ऑफ ब्लड ग्रुप दैट वी फॉलो इज ABO ब्लड ग्रुप सिस्टम proposed by कार्ल लैंडस्टीनर. नाउ अकॉर्डिंग टू कार्ल लैंडस्टीनर, अगर ब्लड को देखा जाए तो इफ द लिक्विड पार्ट ऑफ द ब्लड वी ऑल नो इज नोन एज द प्लाज्मा and the formed elements they float in this plasma. यहाँ तीन तरह के formed elements हम जानते हैं. One is RBC, one is WBC and platelets. But when we talk about blood group, we only talk about RBCs here. हमें सिर्फ RBC पे concentrate करना है. So imagine this is the RBC. Then on the surface of the RBC there are certain proteins present. इन proteins को कहा जाता है antigen. And they will determine the type of your blood group. And इसी का complementary antibody is found in the plasma. So याद रखना, the antigen is the protein present on the surface of the RBC and antibody is present in the plasma. And what is the relationship between them? They are complementary to each other. So अगर किसी के पास antigen A है, for example, अगर किसी का antigen A है तो उसके पास जो antibody होगा वो antibody होगा antibody B. That is why they are complementary. Similarly, अगर किसी के पास antigen B है, then उनके पास antibody होगा A. This is complementarity. Now, depending upon the type of antigen that is present, हमारे पास जो blood groups हैं वो हैं, ये याद रखना, ब्लड ग्रुप एब्सोल्युटली आपके बॉडी का एंटीजन डिटरमाइन करता है, एंटीबॉडी का कोई फंक्शन नहीं है यहाँ. सो देयर कैन बी ब्लड ग्रुप ए, कब? जब एंटीजन ए टाइप हो. देयर कैन बी ब्लड ग्रुप बी, कब? जब एंटीजन बी टाइप हो. देयर कैन बी ब्लड ग्रुप ए बी, दैट मीन्स एक ही आरबीसी के सरफेस में बोथ एंटीजन ए एंड एंटीजन बी है, देन उस इंसान का ब्लड ग्रुप हो जाता है एंड ब्लड ग्रुप ए बी. Or there can be blood group O, that means this individual has no antigen on the surface of the RBC. Now let us see different blood groups के different antibodies plasma में क्या होते हैं. Now इस चार्ट को देखने से हमें एंटीजन और एंटीबॉडी का कॉम्प्लीमेंट्री रिलेशनशिप इजीली समझ में आ जाएगा. सो अगर किसी के आरबीसी के ऊपर देयर इज एंटीजन ए, दैट मीन्स दैट पर्सन विल बी कॉल्ड टू हैव ब्लड ग्रुप ए एंड इनके प्लाज्मा में जो एंटीबॉडी होगा इट विल बी बी. Similarly, if the person has antigen B on RBC, then उनका blood group कहा जाएगा B and will have antibody A in the plasma of the blood. If the person has both antigen A and antigen B on the RBC, then the person will be called to have blood group AB and उनके plasma में no antibodies at all. And last, if there are no antigen on the surface of the RBC, then that individual has blood group O
and the plasma of the individual will have both A and B antibody. Now इतना तो हमें समझ में आ गया। और एक चीज आपको याद रखना होगा कि when a person is giving blood to another one, then the person who is giving blood is the donor and the one who is receiving is the recipient. इन दोनों के ब्लड के ट्रांसफ्यूजन का एक बहुत इंपॉर्टेंट रूल हैज टू बी फॉलोड। What is the rule? The rule is if the person has antigen A, then उस इंडिविजुअल के पास सेम एंटीबॉडी कभी नहीं होना चाहिए। So the antigen of the donor should never match with the antigen of the recipient. इसका मतलब अगर किसी का ब्लड ग्रुप ए है तो उस इंसान को अगर किसी ए ब्लड ग्रुप के इंडिविजुअल को ब्लड देना पड़े तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि उनका है ब्लड ग्रुप में एंटीजन ए एंड उनके प्लाज्मा में जो रिसीव कर रहा है उसके प्लाज्मा में है एंटीबॉडी बी। नो इश्यूज, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। लेकिन अगर सेम ब्लड ग्रुप ए वाले इंडिविजुअल ने एक ब्लड ग्रुप बी वाले इंडिविजुअल को ब्लड दिया तो प्रॉब्लम ये होगा that this person has antigen A but the person who is receiving the blood has antibody B. This is lethal. This can cause agglutination of the blood cells and destroy them. So हमें क्या याद रखना होगा, डोनर का जो एंटीजन है this should never be same to the antibody of the recipient. उल्टा होना चाहिए बट सेम नहीं होना चाहिए। Now अगर डोनर का ब्लड ग्रुप ए बी है, दैट मीन्स उनके पास बोथ एंटीजन ए एंड एंटीजन बी इज प्रेजेंट ऑन द आरबीसी। सच एन इंडिविजुअल कैन गिव ब्लड ओनली टू अ पर्सन हु हैज ब्लड ग्रुप ए बी, बिकॉज जिस इंसान का ब्लड ग्रुप ए बी है उसके पास कोई एंटीबॉडी नहीं है, सो देयर इज नो कॉन्सेप्ट ऑफ रिएक्शन हियर। सो दिस पर्सन हैज बोथ द एंटीजेंस एंड कैन गिव ब्लड टू अ पर्सन हु हैज नो एंटीबॉडीज, सो रिएक्शन होगा ही नहीं। और कौन से इंडिविजुअल के पास कोई एंटीबॉडी नहीं होता है? वन who has blood group AB. That means a donor with blood group AB can give blood only and only to a recipient of blood group AB. लास्ट ऑप्शन आता है अगर एक इंडिविजुअल का ब्लड ग्रुप O है, दैट मीन्स दे डू नॉट हैव एनी एंटीजन, सो सच एन इंडिविजुअल विथ नो एंटीजन हैज नो थ्रेट, वो किसी को भी ब्लड दे सकता है। दे कैन गिव ब्लड टू ब्लड ग्रुप A, दे कैन गिव ब्लड टू ब्लड ग्रुप B एंड ऑल्सो टू AB, बिकॉज इनके पास तो कोई एंटीजन ही नहीं है। सो डज नॉट मैटर प्लाज्मा ऑफ द रिसिपिएंट क्या एंटीबॉडी रखता है, बिकॉज देयर विल बी नो रिएक्शन एट ऑल। सो on the basis of this I can say one thing, that जिसका blood group A है that individual can easily give blood to person with blood group A and to a person with blood group AB। ऐसा क्यों? क्योंकि AB वाले के पास कोई एंटीबॉडी नहीं है, so as a recipient AB एकदम चैन से किसी से भी ब्लड ले सकता है, because they do not have antibody, so they don't have to worry। Similarly, one with blood group B can give blood to another person with blood group B और टू एन इंडिविजुअल जिसका ब्लड ग्रुप AB है। जिसका ब्लड ग्रुप AB है ऐसा डोनर सिर्फ AB रिसिपिएंट को ही ब्लड दे सकता है। एंड लास्ट, जिसका ब्लड ग्रुप O है दैट पर्सन कैन वेरी इजीली गिव ब्लड टू एनीबॉडी, कैन गिव ब्लड टू A, कैन गिव ब्लड टू B, कैन गिव ब्लड टू AB। So in the last table whatever we understood, I have just made a small flow chart of the same thing। So universal donor कौन होता है? जिनका ब्लड ग्रुप है O, so they can actually give blood to anybody। ब्लड ग्रुप A को दे सकता है, ब्लड ग्रुप B को दे सकता है, and can also give to blood group AB, and they also can give definitely to an individual of O blood group, so they can possibly give to everybody। Now the AB blood group is known as the universal recipients। Why? Because they can receive blood from everyone. They can receive it from A, they can receive it from B, they can also receive it from another individual who is AB and can also receive it from O। So all in all, what do we see is universal donor is blood group O। The reason is they do not have any antigen, and the universal recipient is blood group AB। The reason is they do not have any antibody। Now क्योंकि हम ब्लड ग्रुप समझ गए हैं, now we are going to understand another system which is known as rhesus factor।
Rhesus factor is again a protein which is present on the surface of RBC, जैसे एंटीजन्स प्रेजेंट होते हैं, एंड इस एंटीजन का नाम है डी एंटीजन. सो इफ देर इज एन इंडिविजुअल जिसके आरबीसी के ऊपर डी एंटीजन प्रेजेंट है, तो हम उस इंडिविजुअल को बोलेंगे RH पॉजिटिव, एंड इफ इट इज नॉट प्रेजेंट देन दैट इंडिविजुअल बिकम्स RH नेगेटिव. नाउ दैट मीन्स एवरी इंडिविजुअल, जो भी हमारा ब्लड ग्रुप है, इफ एन इंडिविजुअल हैज ब्लड ग्रुप ए, तो वो इंडिविजुअल ए पॉजिटिव हो सकता है, ए नेगेटिव हो सकता है. दैट मीन्स अपार्ट फ्रॉम द एंटीजन ए, अगर किसी इंडिविजुअल का ब्लड ग्रुप सोचो ए है, then this individual if also has D एंटीजन ऑन द सर्फेस ऑफ RBC, तो ये इंडिविजुअल बन जाएगा A पॉजिटिव. लेकिन अगर D एंटीजन नहीं है ऑन द सर्फेस ऑफ द RBC, देन दिस इंडिविजुअल इज A नेगेटिव. सिमिलरली B पॉजिटिव, B नेगेटिव, AB पॉजिटिव, AB नेगेटिव, एंड O पॉजिटिव, O नेगेटिव. नाउ ये रिसस फैक्टर भी ब्लड ट्रांसफ्यूजन में बहुत इंपॉर्टेंस रखता है. व्हाई? लेट अस अंडरस्टैंड दैट. फॉर एग्जांपल, a female who is RH negative, a female who is RH negative marries a man who is RH positive. I am not talking about the blood group, बस सिर्फ rhesus factor की बात करते हैं. So if a female who is RH negative marries a man who is RH positive and conceives, then in that condition the body of the female, which is the body of female who is RH negative, and if the baby that she is carrying, this baby is RH positive, क्योंकि फादर RH पॉजिटिव है, तो हो सकता है कि बेबी RH पॉजिटिव है. ऐसा जब कंडीशन होता है where the mother's body is RH negative and the baby is RH positive, यहाँ एक ब्लड ट्रांसफ्यूजन रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकता है. लेट अस अंडरस्टैंड हाउ. व्हेन द डोनर इज RH positive and the recipient is RH negative, ऐसे कंडीशन में द रेसिपिएंट्स बॉडी व्हेन कम्स इन कॉन्टैक्ट विद दिस ब्लड सेंसिटाइजेस. सेंसिटाइज का मतलब है दिस पेशेंट विल प्रोड्यूस एंटीबॉडी अगेंस्ट RH नेगेटिव, RH पॉजिटिव ब्लड. सो ये जो RH पॉजिटिव डोनर का ब्लड है, इसके अगेंस्ट द बॉडी ऑफ द रेसिपिएंट विल प्रोड्यूस सर्टेन एंटीबॉडीज एंड विल डिस्ट्रॉय द ब्लड. बट जब इनिशियल लेवल फर्स्ट ट्रांसफ्यूजन होता है, तब जो एंटीबॉडीज प्रोड्यूस होते हैं दे आर लेस इन नंबर, तो वो डोनर के ब्लड को ज़्यादा कुछ हार्म कर नहीं पाते हैं. बट जब सेकेंड ट्रांसफ्यूजन होगा, सेम अगर इसी इंडिविजुअल में और एक बार किसी RH पॉजिटिव इंसान का ब्लड ट्रांसफ्यूज किया जाएगा, देन द बॉडी इज प्रिपेयर्ड फॉर द फाइट बिकॉज दे हैव नाउ इनफ एंटीबॉडीज एंड दे आर गोइंग टू डिस्ट्रॉय ऑल द ब्लड सेल्स फ्रॉम द डोनर. ये कैन बी वेरी वेरी लीथल फॉर द रिसिपिएंट. Let's come back to this case study. So in this case, when a female who is RH negative marries a man who's RH positive and she conceives and rears a child who is RH positive. ऐसे कंडीशन में फीमेल का बॉडी RH नेगेटिव है, लेकिन द चाइल्ड इज RH पॉजिटिव, एंड जब इनके ब्लड में कोई भी कांटेक्ट होता है ऑफ द मदर एंड द चाइल्ड, तो इनिशियल लेवल में द मदर्स बॉडी सेंसिटाइजेस, एंड व्हाट विल द फीमेल प्रोड्यूस? शी विल प्रोड्यूस एंटीबॉडी अगेंस्ट द RH पॉजिटिव ब्लड. ये जो RH पॉजिटिव ब्लड है और द बच्चे का जो ब्लड है, चाइल्ड का ब्लड है, उसके अगेंस्ट शी इज गोइंग टू प्रोड्यूस antibodies in her body. These antibodies initially will be less in number, so will not cause much harm to the child. So the first pregnancy will be smooth. Second pregnancy, if happens
एंड अगर टाइम स्पैन कम है बिटवीन द फर्स्ट एंड द सेकेंड प्रेगनेंसी, तब क्या होता है, मदर्स बॉडी इज ऑलरेडी प्रिपेयर्ड विद लॉट्स ऑफ एंटीबॉडीज विच आर अगेंस्ट RH पॉजिटिव ब्लड. सो अगर सेकेंड चाइल्ड भी RH पॉजिटिव होता है, नाउ दिस टाइम द मदर्स ब्लड विल डिस्ट्रॉय द ब्लड सेल्स ऑफ द फीटस एंड दिस विल लीड टू द डेथ ऑफ द फीटस. इसे ही एरिथ्रोब्लास्टोसिस फीटालिस के नाम से जाना जाता है. सो जब ब्लड ट्रांसफ्यूजन होता है, तब लाइक वी टेक केयर ऑफ द ब्लड ग्रुप, वी ऑल्सो हैव टू टेक केयर ऑफ द rhesus factor, because you can see this can be very very difficult if the donor is RH positive and the recipient is RH negative. ऐसे conditions में बहुत problem हो सकता है. So we also have to look after the rhesus factor along with the blood. So with this we understood that what is blood transfusion, what are the different types of blood groups, and what is rhesus factor, and how sometimes this rhesus factor can cause difficulty between the donor and the recipient. So we are meeting again in my next video. Keep revising and do not forget to subscribe my channel. Thank you.